ब्यूरोक्रेसी जिसको आप सरकारी नौकरी बोलते हो, अफसरशाही, नौकरशाही, वहां पर भी यही रूल होता है, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। फायर नहीं कर सकते ना वहां। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे, अपने रजिस्टर्स ओपन कर लीजिए और सबसे पहले तो ये रिवाइज कर लेंगे कि आज तक हो क्या गया। Based on that, we are going to build today and something very important which you need either for your business startup or your business expansion or as an employee, whether you go into a private space or a public space. अगर आप यूपीएससी के ब्यूरोक्रेसी में चले गए एक अधिकारी की तरह, तो भी आज का वर्कशॉप चाहिए आपको। अगर आप प्राइवेट कंपनी में चले गए तो डेफिनेटली आपको ये चीज चाहिए। और अगर आपका खुद का स्टार्टअप है, यू आर योर ओन बॉस, तब तो इस वर्कशॉप के बिना काम कतई ना चलेगा। सबसे पहले यूनिफॉर्म, मिस्टर राहुल इज स्टैंडिंग राइट नाउ, यस और नो? यस मैम। आवाज नहीं आ रही बच्चों? यस मैम। Going to be very interactive today. Mr. Rahul is standing right now. Let's assume that Mr. Rahul is the leader of this whole team. तो इन्होंने ब्लेजर पहना हुआ है, am I right? Yes ma'am. However, he is standing and his blazer is what I would say unbuttoned. Am I right? Yes. Now you might say, ma'am का blazer भी unbuttoned है. What's the problem? What's the big deal? The big deal is if you are in a corporate setup के साथ start करते हैं. I am in my casuals right now. Yes or no? Yes ma'am. So when I wear a blazer on top of it, it just upgrades my overall appearance. So I don't really care whether I button it or not. However, Mr. Rahul happens to be in his formals head to toe. Look at his shoes. Zoom in करिए. The shoes are very nice by the way. Standard traditional Oxford lace-up shoes बोलते हैं इनको. और यही शूज पूरी दुनिया में एक्चुअली एक्सेप्ट भी होते हैं काम करते वक्त। तो पहले इनके जूतों से जरा कुछ सीख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि कहाँ से खरीदे इन्होंने। मजाक नहीं चल रहा है, ऐसे जूते होने चाहिए आपके पास। However, when he stands, it would be very nice if he buttoned his top button. अब इनके अपीयरेंस को देखिए। अब एक और गलती जो जनाब करते हैं, men usually they will button up both the buttons. देखा है आपने? जैसे कि यहाँ the lady over here, she is head to toe in smart formals. चलिए इनके जूतों को फोकस करिए। Shoes which are black, feminine, classy, elegant formal shoes. Perfect, no problem at all. And she is also matching it up with perfect black socks. ना blue है, ना skin color है, ना nude है. Matching socks, matching shoes. No problem at all technically in whatever she is wearing head to toe. The problem is when she is standing, एक तो standing rule, ऊपर से दो buttons. So we have decided to unbutton this one. Now the whole look changes. Only the top button is buttoned up. This is the way to stand when you are wearing your formals. ये सीख लिया आज? Yes. Now when I will tell both of them to go back to their places, जब ये बैठने जाएंगे, रास्ते में क्या करेंगे? एक हाथ से बस कैजुअली अपना बटन खोल लेंगे और खोल के ही बैठेंगे, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना। दिस इज द रूल, कांट हेल्प इट। दुनिया भर के सबसे बेस्ट कॉर्पोरेट एटिकेट ट्रेनर्स ने ये रूल बना दिया। सो लेट्स फोकस ऑन दिस लेडी राइट नाउ, मिस सुष्मिता। बैठे रहिए, फोकस करेंगे। शी इज सिटिंग राइट नाउ, बट शी हैज नॉट बीन टोल्ड that when you are sitting, no matter how cold it is, you got to unbutton your button. तो unbutton कर लीजिए तीनों, इन्होंने already कर लिया। If you will pay close attention, the moment Mr. Pradyum unbuttons himself and sits, he looks more handsome, whether you accept it or not. The moment she does it, she starts to look more smart, and she's done it looking very smart. सब लोग कर लो, क्योंकि ये आना चाहिए, ये आगे डालनी पड़ेगी, ये DNA में आना है। बैठते वक्त अपने आप हाथ पहुंच जाए। अगर बटन लगा हुआ है, मुझे चेयर दीजिएगा। चलिए हमने बटन लगा रखा था, हमको बुलाया गया, इन्होंने ताली बजाई, मैम प्लीज सिट डाउन, थैंक यू सो मच। हम बैठ गए। अब हमारा क्लास खत्म हो गया, जाने का टाइम आ गया, उठे, पूरे फॉर्मल्स में है तो बटन लगाए, बिना बटन लगाए क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, बिकॉज नाउ आई एम इन माई स्टैंडिंग मोड। तो ये सीख लीजिए, हो गया सब
हो गए, ब्लेजर्स अनबटन हो गए ना। थैंक यू सो मच। अब इनको फॉलो करिए, प्लीज गो बैक टू योर प्लेसेस। जानबूझ के इनको वापस भेजा जा रहा है ताकि हम देख सकें कि ये बैठेंगे कैसे। वेरी नाइस, देखिए क्या कर रही है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, ऑलरेडी रेडी हो गए, लुकिंग वेरी हैंडसम, बहुत सही किया, वेरी नाइस, इंप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। अब इन दो पे आते हैं। भाई पूरे टाइम तो ब्लेजर में आप नहीं रहोगे। द बेस्ट कॉर्पोरेशंस, मैं सबसे बड़ी कंपनीज की यहाँ पे बात कर रही हूँ। गूगल के हेडक्वार्टर्स इंडिया में फिलहाल, जो कि हैदराबाद में है। एक मेरी कंपनी ले लेते हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, आई डोंट ओन इट, टी-हब, जिसके भी हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। हर दिन हर इंसान ब्लेजर में नहीं आ सकता है, कंसीडरिंग द साउथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो। वहां पर लोग ऐसे ही आएंगे, मजबूरी है भाई, ऐसे ही आना पड़ेगा। सबसे पहले अब टाई की बात शुरू करने से पहले इनको देखिए, आइए प्लीज फोकस इन ऑन मिस्टर प्रद्युम्न। आइए अच्छे से फोकस करिए, ओनली फोकस ऑन द टाई एंड द टॉप बटन। बटन कर लो बेटा, बटन लगाओ, बटन लगा के दिखाइए, प्लीज कैप्चर इट। पूरे कॉलेज में बच्चों को ये सीखना जरूरी है। हो गया। अब बेटा इसको टाई को थोड़ा सा टाइट करिए, इसको पास ले जाइए बटन के। Zoom in very well and let's look at the proper positioning of the tie now with the button. This is how a tie has to be worn, with the top button of the shirt always buttoned up. कोई और कैंडिडेट है? Let's go to Mr. Rahul. फोकस करिए, चले जाइए, उनके बाद जितने भी बैठे हुए हैं। I think all the three gentlemen have got the perfect way of wearing the tie with the top button. सब पे फोकस करिए, बिल्कुल शानदार, absolutely handsome। वापस आइए, गुड जॉब। अभी मत करो, डोंट डू इट, यू हैव टू लर्न नाउ। अब हमको सीखना है। नाउ दिस इज नथिंग पर्सनल, वी आर बैक टू द सरकारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। प्लीज बुरा मत मानिएगा, हम यहाँ पर अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम सब गलतियां कर रहे हैं। आई हैव मेड माई ओन मिस्टेक्स, यू आर मेकिंग योर ओन मिस्टेक्स, वी गॉट टू, यस और नो? अब देखिए, एक तो दोनों ही वर्जन से अब हमको सीखना है, बिल्कुल जूम इन करिएगा इन पे। इन्होंने क्या किया, बटन तो पास में ले आए, बटन लगाया नहीं और नॉट को भी टाइट कर लिया। दूर से हो सकता है लग जाए कि बटन लगा हुआ है, लेकिन लगा नहीं है। तो सबसे पहले इसको रेक्टिफाई करना है। अब आप कर लीजिए ये गलती जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपका अनटाइडी अपीयरेंस, अनप्रोफेशनल अपीयरेंस या क्लमजी अपीयरेंस शो होता है। नेक्स्ट होते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से धड़ल्ले वाले, कि हम दिखाएंगे भी और हमारा टाई का नॉट भी लूज होगा। मजाक नहीं हो रहा है, सिखाने का बस एक तरीका है। ह्यूमर इज ऑलवेज गुड इन लाइफ। और ये सिर्फ यही नहीं, आप आई होप आप स्पोर्टली ये सब ले रहे हैं। स्पोर्टली नहीं ले रहे, बल्कि पॉजिटिव वे में ले रहे हो ना। ये आपके ऊपर प्रहार नहीं है, सब करते हैं, कॉर्पोरेट्स में करते हैं लोग। तो इसको एक्चुअली एक कॉर्पोरेट टर्म दिया गया है, द 6 o'clock लुक, शाम वाला 6, द 6 PM लुक। जब आप फ्री होके लाउंज जाते हो या अपने दोस्तों के साथ बाहर बस ऐसे यू गो आउट फॉर द ड्रिंक और टू, यू गो आउट फॉर डिनर, दैट्स व्हेन यू कैन लूजन दिस अप, रिलैक्स कर सकते हो। तो जब आप धड़ल्ले से ऐसे आते हैं, पूरा टॉप बटन भी ओपन होता है, टाई भी बहुत लूज होती है, वेरी अनप्रोफेशनल लुक। तो चलिए खड़े खड़े अब इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए जैसे उन्होंने कर लिया। टाइट है लगी नहीं। तो जब बच्चे कहते हैं कि ये बटन टाइट है, तो मेरा जवाब क्या होता है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आपके वार्डरोब में जो कपड़े हैं वो आपके बॉडी टाइप के अनुसार आपको प्रॉपर्ली फिट होने चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी? हमारी। अब जब आपका बटन टाइट है तो आप ही को दर्जी के पास जाके या प्रॉपर शोरूम में जाके अपने साइज के अनुसार कपड़ों की खरीदारी करनी चाहिए ना। हम तो आएंगे नहीं, या आपका बॉस तो आएगा नहीं, या आपका प्रोजेक्ट मैनेजर तो आएगा नहीं। ये समझो, एक्चुअली वो अनयूज होता है ना, अगर बार बार यूज करेंगे तो वो बिल्कुल। ये मैडम तो हमेशा तालियां तालियां बिल्कुल क्लियरली बोलो, क्या बोले, बिल्कुल सटीक बात बोले, ये बच्चों पे ही प्रहार कर रही हैं। बोलिए। मैंने ये बोला कि अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक लूज हो जाएगा ना, ऑलरेडी टाइट है।
नहीं यूज करेंगे ना हम उसको तालियां फिर से बजाओ यार। यार सही बात बोल दी, कंजूसी से तालियां क्यों बजा रहे हो? जो है सो है, बात सही है यार। यूज करोगे तो ये सच में बहुत ढीला हो जाएगा और एक दिन इतना जर्जर अवस्था में आ जाएगा कि दूसरी शर्ट लेने का टाइम आ जाएगा। बात सही कह रही है, बैठ जाओ, थैंक यू सो मच। तो यूज करिए इसको, ये अपने आप ढीला हो जाए। और अगर फिर भी ढीला ना हो तो एक और नई शर्ट ले लो भाई। कितने की आ जाती है? 400-500 में आ जाएगी, 300 में आ जाएगी, ये बता रहे हैं। कोई ब्रांडेड ले लोगे 2000 में आ जाएगी। गुड इन्वेस्टमेंट, ये समझो। 2-3 दिन जोमैटो और स्विगी से कम खा लेंगे, isn't it? मूवी कम देख लेंगे, और भी बहुत सारे खर्चे बचाए जा सकते हैं। एक और बता दो, कोई एक और खर्चा बचाया जा सकता है? वॉक करके कॉलेज आ जाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैं आती हूँ। आप वॉक करते But anyway, the point is, there are many ways to save your expenses and make the right investments. तो ये तो बात हो गई हमारे यूनिफॉर्म की। पर्सनली तो नहीं लिए भाई लोग, चली जाके बैठी। यूनिफॉर्म तक की बात समझ में आ गई? टाई एंड द बटन ऑफ द ब्लेजर। Now we focus on। ये भी था कि टाई जो है ये जो लास्ट होता है ये बेल्ट तक आती है। Yes बेटा, लेकिन आज पूरा वक्त अगर इसमें लगा देंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। We have to touch upon the subject of our workshop today. In the last class we were discussing about money. Yes. Money, our favorite topic. Yeah. Yes or no? Yes. Money has to be our favorite topic. No doubt about it. क्या बात? Did we also discuss about the 4 ways of minting money? Yes, ma'am. उनको हमने कितनी डिटेल में डिस्कस किया? तो जो आखिरी डिटेल है ना ये वाला, पुटिंग समथिंग टू वर्क फॉर यू, प्लीज फोकस करिए। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया है, पुटिंग समथिंग टू वर्क फॉर यू। आज इस पे फोकस करेंगे थ्रू आवर वर्कशॉप एंड स्पेसिफिकली वी विल फोकस ऑन पीपल। अगर आप पीपल पे हैं, अगर आप लोगों का समय खरीद रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, तो इन लोगों से कैसे काम कराया जाए ताकि आप भरपूर मिंटिंग कर सकें। मिंटिंग का जमाना है, मेकिंग का जमाना नहीं है। There's no time to make money, darlings. There's only time to mint money. Time is limited. इस पे फोकस करेंगे, लेकिन उसके पहले किसी और चीज से शुरुआत कर देते हैं। चलिए हम ही कर रहे हैं इतना। एक हेडिंग डाल दो। हेडिंग डालिए, कैपेबिलिटीज। बहुत ही बोरिंग वर्ड है। कैपेबिलिटी हिंदी में लिख लो, इसका एक लूज अनुवाद होता है योग्यता या फिर काबिलियत। हिंदी में लिखना बहुत जरूरी है। शायद इस क्लास में हमने बोला होगा, although I have a strong command of English, I am known for English, लेकिन कुछ बातें जो हिंदी में आपको टच करती है ना, वो इंग्लिश में नहीं कर पाते। योग्यता के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, और अभी तो आप इन चीजों पर बस सीक्वेंशियल फ्लो में फोकस करिएगा, ये सब जुड़ के आपके पॉइंट 4 और पीपल पे आएंगे, ठीक है? एंड में कनेक्ट करेंगे। प्लीज क्लोज करो। दरवाजा बस बंद करना भूल जाते हैं, डिस्टर्बेंस आने लगता है। अगर मैं आपसे बोलूं इतने क्लासेस लेने के बाद कि बच्चों पैसा मत बनाओ, फॉरगेट अबाउट मनी, जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग योग्य, अपनी योग्यता पर फोकस करो। सुन के कैसा लगेगा? मेरे मुंह से कैसा लगेगा? Don't focus on making money. What is money? Just focus on becoming capable. How will you feel if this is coming from my mouth? Forget about other people's mouth. लोग तो बोलते ही बोलते हैं। फील ही नहीं आएगा, ना मैसेज नहीं आएगा, ना मैसेज रहेगा कि सारे लेक्चर्स बर्बाद हो गए। एक तो नंबर 1 बिल्कुल सही, ये सारे लेक्चर्स थे किस काम के लिए, फिर हमारा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? और दूसरी बात बिल्कुल सही, कोई फील नहीं आता, देयर इज नो फील इन इट। लेकिन चलिए लिख लेते हैं। मान लीजिए आज मैंने आपसे जबरदस्ती लिखवा दिया, लिखो फोकस ऑन बिकमिंग केपेबल, अंडरलाइन केपेबल। अभी बिना फीलिंग के लिख लो, क्योंकि मैंने बस बोला है।
मैम कह रही है तो चलो लिख लो, फोकस ऑन बिकमिंग केपेबल। अब नेक्स्ट लाइन में मजा आएगा, इस पे फोकस करेंगे। इफ यू विल डेवलप केपेबिलिटी, नेक्स्ट लाइन लिखो, अब मजा आएगा, फीलिंग आएगी। यू डेवलप केपेबिलिटी, दरवाजा बंद कर देना प्रद्युम्न, बिल्कुल अच्छे से सील कर दो दरवाजा। इफ यू विल बिकम केपेबल, कॉमा, two things are going to follow you in life। अब मजा आएगा, अब लगेगा कि we are back to अनुकृति मैम्स क्लास। Two things will follow you in life। पहले किसी स्मार्ट बच्चे से पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है जिसने मुझे वो ग्लासेस गिफ्ट किए? आओ बेटा, आओ मत खड़े हो जाओ सबकी जगह पे। दो चीजें फॉलो करेंगी अगर तुम योग्य बन जाओगे तो। दोनों मत बताओ, कोई एक बताओ, गलत हो सकती है कोई बात नहीं। थिंक, if you really become capable, if you really become good at your job, whatever you do, चाहे वो बाल काटना हो, चाहे वो मैनेजर बनना हो, चाहे वो कोई भी XYZ टास्क क्यों ना हो, if you become the best in it, if you can't be replaced, one thing which will follow you no matter what is what, I mean, you will not overthink about your future. one more answer है यार, one Money. thing which will follow you is Money. absolutely, लिख दो, one thing which has to follow you by hook or by crook, back सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से, चाहे ना कैसे पकड़ लो, चाहे ना कैसे पकड़ लो, पैसा आएगा ही आएगा। ये फिलॉसफी नहीं है, इट्स द रूल ऑफ लाइफ। इफ यू आर द बेस्ट एट योर जॉब, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस व्यक्तित्व में। पीपल विल पे यू लाइक दिस, दे विल बाय यू एक्चुअली, आपको खरीद लिया जाएगा वहां पे। वन थिंग विच विल फॉलो यू इज मनी, मनी को अंडरलाइन हाईलाइट कर लो। एंड द सेकंड थिंग विच विल फॉलो यू, अच्छा सोचिए, my hint is this is not a funny answer but kind of an entertaining answer, but a one word answer again, one word, हाँ entertainment बोला है मैंने यार, excellence ये सब हटाओ, we are here to make things fun, love, oh, forget it, तेज बोलो, focus on the gentleman, Love. लड़की जो पहले बोला the lady, चलो gentlemen, hear me out, if you become capable, the lady shall follow, and the ladies know it too, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है, the lady will follow along with the money, write it down, एक तो पैसा और दूसरी माशूका, ये दोनों योग्यता के साथ आते हैं। थोड़ा सा फिलॉसफी में जाएंगे, देखो ना, बिल्कुल देखो, माशुका, मोहतरमा, लेडी, लेडी लव, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, लिखिए, लिख लिया, एक तो ये फंडा। थोड़ा सा फिलॉसफी में जाए, पकाने वाली फिलॉसफी नहीं, बैक टू द फिलॉसफी फ्रॉम वेयर वी लर्नड इट एक्चुअली। I'm a student of philosophy, by the way. Not because I like to teach philosophy and pakaofy my students. आपने एक चीज नोटिस करी है, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कर लो, बीटेक कर लिया या बीएससी कर लिया, जो भी कर लिया, फिर आपने एमटेक कर लिया, उसके बाद फिर आप कुछ और भी करते हो, फिर आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप अपनी बस एकेडमिक क्वालिफिकेशन को चढ़ाते जाते हो, एक टाइम पर आपको एमफिल ही करना पड़ता है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी पे ही आ जाते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से शुरुआत करी हो, उसके आगे बढ़ गए पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बात आके रुकती तुम्हारी फिलॉसफी पे ही है। व्हाई? कौन बता सकता है? फिलॉसफी पे आगे पीएचडी बन भी जाएंगी ये डॉक्टर सुष्मिता, पीएचडी करने के बाद डॉक्टर लग गया, बट डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही बोला जाता है। व्हाई? फिलॉसफी का मतलब क्या है हिंदी में? लिखो दर्शन। दर्शन, मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत हो सकती है, करेक्ट कर लेना। दर्शन शास्त्र इस फिलॉसफी। यश बेटा, दर्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? बस दर्शन, यानी कि कहते नहीं है अपने दर्शन दे दो यार, टू सी समथिंग, बिल्कुल सही। दर्शन मीन्स टू सी समथिंग, कुछ देख लेना। अब मान लीजिए
राहुल आए मेरे पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेके। वो गाना सुना है? अरे कौन सी मूवी का था यार, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, ब्ला 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 जो छुपा रहे हो। ये लाइन लिख लो गाने की। दिस इज द इजीएस्ट वे टू टीच यू द मीनिंग ऑफ दर्शन। यानी कि अगर राहुल मुस्कुरा रहे हैं और मैं, इस हिंदी पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैं अगर दार्शनिक नहीं हूं, मम्बलिंग प्लीज, मम्बल ना करें आज। मैं अगर दार्शनिक नहीं हूं, मुझ में दर्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं देखूंगी कि ये सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, सब ठीक है। लेकिन मैं अगर इनकी मुस्कुराहट में इनका दुख पहचान लूं, तो मैं दार्शनिक हूं। दर्शन बस आपको ये सिखाता है, जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे वो आपने देख लिया, आप दार्शनिक बन गए। यानी कि जैसे जैसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बढ़ती जाती हैं, स्टैटिस्टिकली हम ये मान के चलते हैं कि आपकी मैच्योरिटी यानी कि आपकी परिपक्वता बढ़ती जा रही है, इसीलिए आप दार्शनिक बन गए। और अब जब ये मुस्कुराते हैं तो हम इनका दुख पकड़ लेते हैं, यानी कि हम मैच्योर हो गए। तो ये पॉइंट खत्म करोगे तो यहाँ से फिलॉसफी की शुरुआत है। फिलॉसफी किस बात की पढ़ेंगे आज? पैसे की और मोहतरमा की, कि ये दोनों कैसे आती है, फिलॉसफी ने हमको कैसे सिखाया, भारतीय दार्शनिक शास्त्र ने हमको ये चीज कैसे सिखाई। ये थी ना ये कौन सा हमारा वो था एपिक स्क्रिप्चर, महाभारत। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था ना, उसी से शुरू करते हैं। पहले तो ये पॉइंट लिख लो, दार्शनिक जब बन जाते हो इट मींस यू हैव बिकम अ पर्सन ऑफ मैच्योरिटी, हिंदी में जिसको बोलते हैं परिपक्वता। लिख लिया प्रदीप जी? लिख लो, काम आएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। परिपक्वता आई थिंक मेरी स्पेलिंग सही है, आधा क पक्वता। जिस दिन तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ गई, तुमने दर्शन पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल दे दें, पैसे से ही जुड़ा, पैसे से ही शुरू करते हैं। महाभारत भी पढ़ेंगे आज, रामायण भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक कविता का सार पढ़ लेते हैं। एक जनाब थे आधुनिक हिंदी साहित्य में, इनका नाम लिख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनकी एक कविता थी। कविता में घुस जाएंगे तो पूरा पीरियड चला जाएगा। कविता का सार मैं बता देती हूँ, वो तुम लोग जल्दी से लिख लो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 3 लोगों को गोली लगी। गोली मतलब कि बुलेट से गोली लग गई। हाँ, पिस्टल और भी कोई होती है, रिवॉल्वर, शॉटगन, यानी कि गोली लग गई और तीनों की डेथ हो गई। ओके, मम्बलिंग नहीं करेंगे प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्यान से बस लिख लो, सार लिख लो। मरते वक्त एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से निकला माओ। माओ मतलब माओइस्ट को जानते हो ना, जन नामबंदी करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले, थोड़ा सा टेररिज्म क्रिएट करते हैं, माओइस्ट की बात हो रही है। माओ निकला और तीसरे आदमी के मुंह से निकला आलू, पोटैटो, आलू। लिखिए, यही है फिलॉसफी। लिखना है बेटा इसको। एक के मुंह से निकला राम, एक के मुंह से माओ और एक के मुंह से आलू। तो जैसे हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया कि इनकी मुस्कुराहट में हमने इनके दर्द को पकड़ लिया, यानी कि हम दार्शनिक बन गए। अगर आप इन 3 पंक्तियों का मतलब मुझे बता सकते हो तो आप दार्शनिक हैं। ये जो कविता है सक्सेना जी की, इसको एक्चुअली फिलॉसफी की पढ़ाई की शुरुआत के पहले एक बेंचमार्क माना जाता है। बच्चों से एक्चुअली क्लास में बोला जाता है कि ये सार था उनकी कविता का। अगर आप इस सार को समझ गए हैं तो आप फिलॉसफी पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। कौन बता सकता है इन 3 लाइन्स का एक्चुअल मतलब क्या है? हिंट क्या है? ये बात आपके उन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है, योग्यता, मनी, मोहतरमा।
आलू, हाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट मत जोड़ो, अभी मजाक की बात नहीं है बेटा। हाँ Maybe he has asked to bring potatoes. मेरा रिएक्शन कैप्चर कर ले तो ज्यादा मजा आ जाता है इस वक्त। वो अभी मुंह मारा होगा। देखिए बच्चों, पैसे की बात हुई थी, सभा में थोड़ी सी शांति शांति शांति, आलू निकला, ठीक है। पोस्टमार्टम हुआ इन तीनों का, पहले दो के पेट भरे हुए थे, तीसरे का पेट खाली था। अब ये मजाक की बात नहीं है, अगर आप दार्शनिक हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर पेट खाली है तो चाहे आप राम यानी कि धर्म के समर्थक हो या आप दुष्प्रचार के समर्थक हो, आप किसी भी दर्शन के या तो समर्थक हो या विरोधी हो, उसके लिए पहली शर्त है पेट भरा होना चाहिए। क्योंकि अगर पेट खाली है तो सपना भी सिर्फ रोटी का है। जो ये दर्शन समझ गया, यानी कि पेट भरा है तो मन में विचार आएंगे, जब विचार आएंगे तब आप किसी के समर्थक बनोगे या विरोधी बनोगे। पहली शर्त है पेट भरा होना चाहिए, पेट भरा है तो सब हो सकता है। What he was trying to tell through these lines was money is the start of everything. पैसा है तो रोटी है, रोटी है तो पेट भरा है। Back to where we started with. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी said, कितनी फिलॉसफी पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, कितनी किताबें, कितने स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे। द फर्स्ट कंडीशन, उन्होंने शर्त वर्ड यूज किया, शर्त। शर्त क्या होती है? कंडीशन है। रोटी का मतलब एक्चुअल लिटरली रोटी नहीं था, इट वॉज अ मेटाफोरिकल मीनिंग विच मेंट मनी। इफ यू डोंट हैव मनी, डू यू हैव फूड ऑन द टेबल? आप किसी के भी समर्थक बनो, विरोधी बनो, ये काम करो, वो काम करो, ये फोड़ो, ये झंडा गाड़ो, पहली शर्त है योर बैंक बैलेंस शुड बी गुड। देयर शुड बी फूड ऑन द टेबल फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। दिस इज दर्शन। पैसे से ही दर्शन की पढ़ाई पैसे से शुरू होती है, अर्थ से। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, they are brothers and sisters. Who's connecting them? Money. लिख लो, money को highlight कर दो। Sarveshwar ji started the study of philosophy with money. Now let's come back to महाभारत। ये तो हो गए हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि। अब आते हैं इसके पीछे, रिवाइंड, महाभारत। द्रौपदी पे आ जाए। द्रौपदी का स्वयंवर होना था। देखो, आप लोगों ने अगर अच्छे से महाभारत पढ़ी है, द्रौपदी एक्चुअली अर्जुन के लिए अपना मन बना चुकी है। वो बन चुका था मन पहले से, वो बाकी प्रदर्शन बाद में हुआ है कि वो तो करना ही होता है स्वयंवर। लेकिन शी वॉज इन लव विद अर्जुन, शी वांटेड टू बी विद हिम। तो अगर मोहतरमा आपको चाहने लग जाए ना आपकी योग्यता के लिए, तो किसी भी बंदे को साइडलाइन कर सकती है। ये द्रौपदी ने कैसे प्रूव किया? ये हमारे हिंदू धर्म में, हमारे स्क्रिप्चर्स ने, दर्शन के माध्यम से हमें कैसे सिखाया। आए सारे राजाओं की सभा लगी, हमारे दुर्योधन भी आए, कर्ण को भी उठा के ले आए थे, अर्जुन बढ़े आगे, तो अर्जुन ने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन हो गया, वो मछली की आंख में लगा दिया। तो स्वयंवर तो होना था अर्जुन से। वो बात अलग है कि बाद में फिर पांडवों की एक पूरी कहानी बन गई है ना, उनकी माता जी की वजह से। लेकिन फिर दुर्योधन को बड़ी खलबली मची, नहीं ये नहीं होने दूंगा मैं, कर्ण को आगे बढ़ाया। मिस द्रौपदी सेड, ये राजाओं की सभा है, तो जो दुर्योधन अपने भाइयों को 5 गांव नहीं देना चाहता, इमीडिएटली उसने बोला कर्ण ये अंग देश के राजा हैं, अंग देश के, उसकी अपनी महानता है, ठीक है। उसने अपने दोस्त को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, राजा है वो। फिर से आगे बढ़े,
द्रौपदी ने बोला ये क्षत्रियों की सभा है, अपनी जाति कैसे बदलती है, ब्लड लाइन इज बट ब्लड लाइन, ये क्षत्रियों की सभा है। तो मिस द्रौपदी ने कर्ण जी का पत्ता काट दिया बिकॉज शी न्यू शी वांटेड टू बी विद मिस्टर अर्जुन। Why did she want to be with him? Because he had the looks. योग्य था बंदा। मिस द्रौपदी न्यू ये अपने साथ धन संपत्ति सब लेके आएंगे, राजा हैं और योग्य राजा हैं, इनके साथ मेरी जिंदगी सुखी रहने वाली है। जो मैं टर्म्स यूज करती हूँ, स्टेबल सिक्योर होगी मेरी लाइफ, रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अकाउंटेबल बंदा है, योग्य है। मोहतरमा चलेगी उनके साथ, ये सब ये बहुत पहले हमारे शास्त्र ने ही सिखा दिया। मिस्टर अर्जुन योग्य थे, धन संपत्ति ऑलरेडी थी उनके पास, थी कि नहीं थी? थी। बाद में महाभारत में बहुत कुछ हुआ है, फिर चले गए जंगल में चले गए, फिर युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ है। दार्शनिक शास्त्र पढ़ने के लिए महाभारत में बहुत है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक एपिसोड पे फोकस कर रहे हैं जब वो राजा हैसियत से गए, काबिल थे, संपत्ति थी और मोहतरमा भी आ गई। रामायण पे आ जाते हैं। मिस सीता न्यू ऑलवेज दैट मिस्टर राम इज गोइंग टू बी हर ही मैन, सिर्फ वही धनुष को उठा पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? योग्य थे, नंबर 1। अभी देखिए वो फिर वानर सेना, वहां तक मत जाइए, अभी सिर्फ एक एपिसोड पे फोकस किया जा रहा है। एपिसोड एक लर्निंग है ये। उस समय योग्य भी थे, धन संपत्ति सब, अयोध्या सब कुछ पूरा तामझाम, विवाह धूमधाम से हुआ, प्रजा खुश, योग्य थे, धन संपत्ति, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की भाषा में बात करी जाए तो बंगला, पेंट हाउस, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस। मिस सीता डिसाइडेड शी वुड बी विद राम। Above all, he was capable कि अगर चला भी जाएगा, he will earn it back. That's the point of capability. कि if tomorrow the market goes down, the shares go down, or if the business collapses, the man is capable enough to build it up from scratch once again because he is capable. इसको खैरात में या चैरिटी में इसके पिताजी से मिला नहीं। He knows how to build it up again. तो पैसे और मोहतरमा की ये बात हमने महाभारत और रामायण से भी सीखी है। आप योग्य बन जाइए, पैसा और मोहतरमा अपने आप आपके पीछे पीछे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया थोड़ा सा फिलॉसफी विच कनेक्ट्स योर कैपेबिलिटी टू मनी एंड women in life. Women should know about it, men should know about it. ये बेसिक दर्शन शास्त्र है जो आपको पता होना चाहिए। अब now that we have established that money does play a big role, let's come back to money. The point 4 of minting money is putting people to work for you. I am your boss. मान लीजिए आप सब मेरे एम्प्लॉइज हैं, कंपनी को कोई फैंसी नाम दे दो यार, क्या दो जल्दी से, कंपनी को कोई फैंसी नाम दो, नाम दो कंपनी को, मजा आएगा। विद्यार्थी कंसल्टेंसी। हाँ, हम विद्यार्थी कंसल्टेंसी। नो कंसल्टेंसी ये सब नहीं यार। Come on. Think of a name, a nice name. No consultancy, no nothing. Just a name. एक नाम दो। हाँ? Sorry. Ex-cops यानी कि पहले थे cops. Max House अच्छा नाम। चलो Max House. We believe in maximizing everything we do. Maximizing the money we make, maximizing the productivity, maximizing the capability of all our employees. अब हम कंपनी में आ गए। ये क्लासरूम नहीं है, आज हमारा बोर्ड रूम है। मैंने आप सबको खरीद लिया, ये समझो, आपको सैलरी मिलती है, आप काम करके हमारी कंपनी में पैसा डालते हैं और हम दुबई और मॉरिशस की वेकेशन पे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है? I have so much money sitting in my company
that I can afford to buy your time. Now you make so much more money from it. My company is running a huge profit. ग्राफ बनाओ, ग्राफ पे फोकस करेंगे। सब लोग ये ग्राफ बनाएं, आज सीखना है। लोगों को मैनेज कैसे करते हैं जब आप लोगों का समय खरीद लो। मान लो बच्चों x, y, this is, लिख लीजिए, the capability, the commitment graph. कमिटमेंट का मतलब जानते हो? कमिटमेंट किसी भी कॉज या किसी भी इंसान या किसी भी पर्पस के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हैं, कितने ईमानदार हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, यानी कि धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो लिख लो कमिटमेंट। और अब बात थोड़ी सी ज्यादा मजेदार होगी। कैपेबिलिटी की बहुत बात करी हमने, कैपेबल हो जाओ, दोनों चीजें अपने आप आएंगी। दर्शन से भी जोड़ दिया। दिस इज योर, लिख लो कैपेबिलिटी ग्राफ। मुझे पता है मेरी कंपनी में 4 टाइप के वर्कर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, और वो ये ग्राफ तय करेगा। इस ग्राफ पे फोकस करिए, अभी तो ये शुरुआत है इसकी। यहां पर ब्लैक इंक कहां है मेरी? लेट्स स्टार्ट विद दिस स्क्वायर। लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं एरो बना रही हूं बिल्कुल वैसे ही बनाना। और सुष्मिता उनका चेक करिएगा। देखो बच्चों, आप तो यहां पे फोकस करो, बिल्कुल जूम कर लो। लो कैपेबिलिटी एंड लो कमिटमेंट, इनको मैं बोलती हूं, सब लोग लिख लो, ये आपके बिजनेस में काम आना है। बिजनेस में नहीं, कॉर्पोरेट में जब मैनेजर बन जाओगे तब काम आएगा, सीनियर मैनेजर। ये होता है टाइप सी वर्कर। मुझे पता है यहां पर 10% टाइप सी वर्कर्स बैठे हुए हैं। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है। लो कमिटमेंट, लो कैपेबिलिटी। ऐसा इंसान कौन होता है? वो आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति डेडिकेटेड भी कम है, और उसकी जो ओवरऑल कॉम्पिटेंस है, प्रोडक्टिविटी है, काबिलियत है, वो भी बहुत कम है। तो ऐसे इंसान के साथ आप क्या करोगे? बताइए राहुल, सोच के बताइए, ऐसे इंसान के साथ आप क्या करेंगे? चल नहीं सकता बेटा, कॉर्पोरेट कंपनी है, सैलरी तो भी गई बाहर में, आप उनको एज अ लीडर क्या करोगे? सैलरी बाद में नहीं, अभी क्या देखो, निकाल भी नहीं सकते। लो सैलरी पे अभी आप देखो, अच्छा पॉइंट मिला है, वो 2 पोलैरिटीज मिला है। राहुल ने बोला लो सैलरी पे रखेंगे, नोट करिए। एक स्पेक्ट्रम बना लो साइड में। स्पेक्ट्रम के हमको 2 पोलैरिटीज दिए इन दोनों ने, बिल्कुल सही किया। राहुल ने बोला बना लीजिए लो सैलरी, गुड पॉइंट, ये पहला एक्सट्रीम है। दूसरा प्रद्युम्न ने बोला फायर देम, सेकेंड एक्सट्रीम। अब दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन आप क्या करोगे बताते हैं। वो आप लिखते जाओ, ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। आप अपनी तरफ से मेंटोरशिप दीजिए, आप अपनी तरफ से इनको वर्कशॉप्स कराइए, अपस्किल देम, अपग्रेड देम, गिव देम अपॉर्चुनिटी टू लर्न। बोलिए मैं तेरे को सिखाता हूँ, मैं तेरे को कोचिंग देता हूँ, मैं तेरे को ट्रेन करता हूँ। समझ में आता है? हम आपको ये ट्रेनिंग देते हैं, आपको अपस्किल करते हैं। यू रेसिप्रोकेट, रेसिप्रोकेट का मतलब रिस्पॉन्ड, लर्न, मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखिए। अगर सीख जाते हैं तो कैपेबिलिटी बढ़ेगी और कमिटमेंट लेवल भी बढ़ेगा। तो जैसे राहुल ने बोला लो सैलरी से स्टार्ट करो, परफॉर्मेंस देखकर सैलरी बढ़ाओ, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ, आपने अपस्किल किया, आपने ट्रेनिंग दी, मेंटोर किया, गाइड किया, लेकिन ये वाले टाइप सी वर्कर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। फायर देम राइट अवे, लिखिए फायर देम गिल्ट फ्री, विदाउट एनी गिल्ट। कभी कभी बॉसेस को ये लगता है, बड़े अच्छे बॉसेस होते हैं, बेचारा क्या करेगा, बेचारे की लाइफ कैसी चलेगी। आप बेचारे बन जाओगे, वो बेचारा अपने आप को नहीं बदलेगा, आपकी कंपनी बेचारी बन जाएगी। फायर देम, और लिखो बड़ा बड़ा,
गिल्ट फ्री, विदाउट एनी सेंस ऑफ गिल्ट फायर करिए अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देते तो। ये तो हो गया टाइप सी, समझ में आ गया? सारे हथकंडे अपनाने के बाद उसके बाद फायर करो। भाई देखो सिखाने की कोशिश करी, मौके दिए, लो सैलरी पे कुछ समय के लिए रखा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फायर। नेक्स्ट वी कम टू दिस पॉइंट, हाई कमिटमेंट लो कैपेबिलिटी। ये इनको मैं बोलती हूं बी कमिटमेंट टाइप वर्कर्स। लिख लो, बी कमिटमेंट टाइप वर्कर्स। इनका कमिटमेंट आपकी तरफ बहुत है लेकिन कैपेबिलिटी, योग्यता कम है। यानी कि ये वो इंसान है जिसके साथ आप अपना ब्लैंक चेक छोड़ के घर जा सकते हो। मेरी चेकबुक प्रद्युम्न के पास है, ही इज अ कमिटेड वर्कर लाइक एनीबॉडी। ये कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। मैं आंख बंद करके अपनी कंपनी के ताले खोल के जा सकती हूँ वेकेशन पे, दिस इज दैट एम्प्लॉय। लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट में, मुनाफे में योगदान नहीं दे रहे। ऐसे इंसान के साथ भी मैं बताऊंगी क्या करना। ये तो वो है ब्लैंक चेक वाला, दिस पर्सन विल स्टे विद यू। नेक्स्ट, हाई कैपेबिलिटी लो कमिटमेंट। ये है वो बदमाश चंट टाइप, चंट, बट इंग्लिश में बोलते हैं गेट्स द जॉब डन। जब काम करवाने की बात है तो डंडा करके काम तो करवाता है, यानी कि धंधा लेके आता है। अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? यहाँ पे डिलेमा क्या है? डिलेमा, फोकस ऑन दीज टू। इसको पहले नाम लिख लो, दिस इज द बी केपेबल टाइप वर्कर। बी केपेबल, बी कमिटेड। ये वाला बंदा कमिटेड है, ये वाला केपेबल है, इसमें कमिटमेंट नहीं है, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। नाउ वेयर इज योर डिलेमा? एथिकल डिलेमा क्या है? मुझे इसकी जरूरत है, आई नीड दिस पर्सन, और इससे मुझे प्यार है। आई नीड हिम बट आई हैव माई रोमांस विद हिम। डिलेमा ये है। अब आपके कंपनी में मजे की बात ये है, ये गोला बना लो, 70% of your employees will fall in this B category. इसको मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि इससे धंधा आता है, इससे प्यार है, क्या करूं, इसको छोड़ा नहीं जाता। दिस इज द डिलेमा, एथिकल डिलेमा ऑफ अ बॉस। कैसे ट्रीट करना है बताएंगे। अब तो ये चंट है, यहाँ पर तो आप ही को ऐसा बॉस थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। गाली गलौज नहीं कर सकते, सुना नहीं सकते, ईगो बेस्ड बंदे की बात आ जाएगी। इसकी तो ईगो हाई है, इसके पास जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा फ्यूल करना पड़ता है क्योंकि धंधा लेके आता है। तो कैसे ट्रीट करेंगे बताएंगे। अब इसके बाद आते हैं टाइप ए वर्कर्स। ये वाला बॉक्स, हाई कमिटमेंट हाई कैपेबिलिटी बना लो पहले। कमिटमेंट भी बहुत है, कैपेबल भी बहुत है। ऐसे इंसान के साथ चलो ट्रीटमेंट, हम बोला ना हर एक वर्कर के साथ ट्रीटमेंट कैसा करना है। टाइप ए से खत्म करते हैं पहले, ये सबसे आसान है। These are the rare 10% heroes of your company. They are the heroes. इनके पैर रोज धोने हैं अपने हाथों से और पूरी कंपनी में चरणामृत की तरह सबको पिलाने हैं। रोज इनकी पूजा करनी है, रोज इनके पैर धोने हैं। इनको कैसे ट्रीट करें? टाइप ए को, टाइप ए को अपनी कंपनी में रिटेन करने के लिए एज अ बॉस या एज अ मैनेजर क्या करना पड़ेगा? लिख लो, अक्नॉलेज, इनके काम को अक्नॉलेज करिए, लिखिए जल्दी से। अप्रिशिएट, एनकरेज, और इनको दीजिए प्रमोशन, अपलिफ्ट देम। अक्नॉलेज, अप्रिशिएट, एनकरेज, अपलिफ्ट, प्रमोट देम। इनको बनाइए अपने कंपनी में लीडर्स। आई टीच लेस, मैं पढ़ाने आ जाती हूँ क्योंकि पढ़ाना मेरा एक पैशन है। बट मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स आर द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनसे मैं बात करती हूँ वर्कशॉप्स की बात। तो कंपनीज के सीईओज होते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि पिछले साल में कितने टाइप ए वर्कर्स आपकी कंपनी को डिजाइन करके गए। वो कहते हैं बहुत गए, जाते हैं।
टाइम हमें भी पता है, बट डोंट बम्बल। टाइप ए अगर आपकी कंपनी से जा रहा है, इट इज योर लॉस। द टाइप ए विल बी पिक्ड बाय द मार्केट विद अ बिगर पे पैकेज नाउ। क्यों जाता है? पूछा गया। टाइप ए से मैं बात करती हूँ। मान लीजिए इन तीनों ने रिजाइन किया, टाइप ए, टाइप ए, टाइप ए। ये लोग यही बोलते हैं, जिस दिन तक हमने अपने पेपर्स पुट अप नहीं किए, टिल द डे वी डिड नॉट पुट आवर पेपर्स डाउन। पुटिंग योर पेपर्स डाउन का मतलब जानते हो? इस्तीफा, रेजिग्नेशन। उस दिन तक हमारे बॉस ने बोला, भाई तुम चले जाओगे तो काम कैसे होगा, हमारी कंपनी कैसे चलेगी, तुम तो इतना अच्छा काम करते हो। सर 2 साल से काम कर रहा था, आपने तब तो तारीफ नहीं करी, आपने तब तो अप्रिशिएट नहीं किया। यू हैव टू, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आई होप तुम लोगों ने लिख लिया है। Acknowledge, appreciate, encourage, uplift, promote these people। ये तो अगर टाइप मैंने पढ़ गए जल्दी से। टाइप बी, अब लिख लो। टाइप बी केपेबल। भाई इसमें बड़ी ईगो है, ये बदतमीज है, टाइम पे आता नहीं है, टाइम से पहले चला जाता है, अपनी रिपोर्ट फिल इन नहीं करता, अपने कॉलीग्स को रूडली ट्रीट करता है, पोलाइट नहीं है, लेकिन काम पे जब आती है तो काम करवाता बहुत सही है, टाइम पे काम हो जाता है ना। इसकी ईगो बहुत ज्यादा है, और आपकी कंपनी में 70% लोग ऐसे ही हैं। आपके पास ये लोग ज्यादा हैं या ये लोग ज्यादा हैं, ये आपकी पर्सनालिटी एज अ लीडर ये डिसाइड करेगी। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आई लव माय कंपनी, सॉफ्ट हार्टेड, वेरी नाइस पर्सन, तो आपके पास बी कमिटेड ज्यादा आएंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यस और नो? संगति की रंगत, वैसे ही एम्प्लॉय ज्यादा होंगे। कमिटेड तो है लेकिन काम करना नहीं आता। अगर आपका टेम्परामेंट ऐसा है कि सबसे पहले धंधा मैं डंडे से कराऊंगा या कैसे भी कराऊंगा, तू जाए बाहर में, अपना काम बनना चाहिए। अगर आपकी ये पर्सनालिटी है तो आपके पास टाइप बी केपेबल वाले ज्यादा होंगे। प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि 2 मिनट और लगेंगे। नाउ दिस परसेंटेज विल बी डिसाइडेड बाय योर पर्सनालिटी एज अ लीडर। अगर आपको लगता है कि सबसे पहले धंधा आता है और जनता बाद में आती है, तो आपको ऐसे ही कट थ्रोट शार्क्स मिलेंगे। काम कराने में तो बहुत अच्छे, लेकिन कमिटमेंट लेवल की कमी है। टाइप बी केपेबल को कैसे हैंडल करोगे? भाई यहां लिख लो, इसकी ईगो को नहीं तोड़ सकते। झगड़ा, इट विल बी अ बैटल एवरी डे। अगर राहुल टाइप बी केपेबल है और मैं इसकी ईगो को तोड़ दूं, प्रॉब्लम है, ये तो मुझसे लड़ेगा। It's going to be a battle every day, a headache, can't handle it every day। इसके साथ क्या किया जाए? इसको निकाल भी नहीं सकते, इसकी जरूरत, बोला था ना इसकी तो जरूरत है, धंधा लेके आता है, इसको रखना भी है, निकाल भी नहीं सकते, तो हाउ डू आई चैलेंज? बोलिए इसको। जहां पर क्रेडिट ड्यू है, एक्नॉलेज लगा दो। Wherever credit is due, काम अच्छा किया, एक्नॉलेज है, एक्नॉलेज। Mr. Rahul, your work is praiseworthy, but now give him a challenge. Challenge दीजिए। ईगो को नहीं तोड़ना है, ईगो वाले बंदे को चैलेंज देना है। Tell him, I am on your side. I want to promote you, but how do I promote you? You don't do the filing work. How will you get the filing work done from your team? You don't come on time. How will you ensure that your team members are coming on time? Can you do that? If you can do that, I am on your side. I will promote you. आप इनको एक हेल्दी चैलेंज दीजिए, देखिए कैसे उभर के आएंगे। अब आपने इनको क्रिटिसाइज नहीं किया, ईगो को ब्रेक नहीं किया, गेव हिम अ चैलेंज। भाई मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तू ये सब कर तो, ताकि मैं प्रमोट करूं तेरे को, काम तो तेरा अच्छा है। अब ये 1 हफ्ते के अंदर रावण से श्री राम बन जाएंगे। काम हो गया, हैंडल हो गए। अब बी कमिटमेंट। सबसे पहले तो तारीफ करो, शो देम लव। यस, कमिटमेंट वाला बंदा है, आई कैन गिव माय ब्लैंक चेक टू दिस पर्सन। लेकिन भाई बिना कैपेबिलिटी के काम ना चलने वाला, तो यहां पर फिर से वही फंडा, सिखाओ। आई एम रेडी टू मेंटोर यू। हम आपको अपस्किल करेंगे, हम आपको अपग्रेड करेंगे, हम आपको ये सिखाएंगे, वो सिखाएंगे, आप सीखिए। यू रेसिप्रोकेट, सेम फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर एक चैलेंज आएगा। ये जो कमिटमेंट वाले बैठे हुए हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, लिख लो। एक तो है
जेन्युइन कमिटमेंट, असली वाला कमिटमेंट। और दूसरा वाला सस्ता टाइप, कन्वीनियंस, कन्वीनियंटली कमिटेड। लिखो, कौन लिखेगा? आप इनमें काबिल नहीं है ना, ब्लैक लिस्टेड हैं, आप सरकार के लिए कुछ भला नहीं कर सकते तो नुकसान भी मत करो। आपको ऑन फील्ड एक अफसर या एक अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। आपको सचिवालय में किसी इक्विवेलेंट पोस्ट पर बस एक कुर्सी पे बैठा दिया जाएगा। बैठे रहिए, कागजी काम कर लीजिए, फाइलिंग वर्क कर लीजिए, फील्ड में जाके सरकार का नुकसान मत करिए। अगर भला नहीं कर सकते बैठा देंगे दोबारा वापस, बैठे रहो, अपनी सैलरी लेते रहो। अब तो वैसे भी पेंशन स्कीम चली गई तो सरकार की वो लायबिलिटीज भी खत्म। ठीक है, सस्पेंड हुए थे, तुम्हारी इंटेग्रिटी ऑनेस्टी तो डिस्कस कर ही लिया है। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पर सवाल वैसे ही, प्रश्न चिन्ह वैसे ही बन चुका है। चलो सचिवालय में आ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन बैठे रहो, चुप रहो, काम करते रहो कागजी। बाकी जो हमारे काबिल अफसर हैं वो फील्ड को संभाले हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में इस तरीके से मैनेज होता है, प्राइवेट सेक्टर में तो फायर ही हो जाते हो। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. दोनों प्राइवेट और पब्लिक सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फायरिंग की जगह सस्पेंशन, और वो भी आपके सीवी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। इट्स अ ब्लॉच, सस्पेंडेड, योर इंटेग्रिटी इज क्वेश्चन। जो आपका सबसे बड़ा ह्यूमन वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं आपका मूल, यस मैम, क्लासिक और जो आपका मूल है, आपका वो क्वेश्चन में आ गया है। तो सस्पेंडेड थे आप, यानी कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं रहे। तो सरकार ने ऑलरेडी लगा दिया धब्बा, सचिवालय में बैठे रहोगे, लेकिन अब लोग भी जब आपको देखेंगे तो उसी निगाह से देखेंगे कि हाँ सस्पेंड होके वापस आए हैं। इट इज एज गुड एज गेटिंग फायर्ड। यस और नो? Yes, ma'am. या फिर फायरिंग से भी ज्यादा गंदा है? पूछो क्यों? क्योंकि वापस आ भी रहे हो तो उसी दफ्तर में आ रहे हो। यहाँ तो फायर हो गए, चलो कहीं और चले जाओगे। यहाँ पर उन्हीं लोगों से रोज मुलाकात होनी है। Probably worse than getting fired. Clear? Thank you so much, class.